इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है, जो कि घर में रहना और बच्चे पैदा करना, घर का काम करना, घर संभालना, इसलिए वो उनको नहीं जाने देते। लेकिन वो जा सकती हैं, समझे कुछ? मतलब कि तुम खाना नहीं खा सकते लेकिन खा सकते हो, तुम घूमने नहीं जा सकते हो लेकिन जा सकते हो, तुम बॉल नहीं फेंक सकते लेकिन फेंक सकते हो। Physiologically, psychologically, biologically, physically, and depending upon the makeup, Almighty God, our Creator, has set roles for them. And there's a verse in the Quran from Surah Nisa, chapter number 4, verse number 32. It says that do not covet things. Don't say this is right or this is wrong. You may never know. Allah knows what is best for you. What you may think is best for you may not be good for you. What you think is bad for you may be good for you. If you read the Nuzul Quran, why was this verse revealed? This verse was revealed because the wives of the Prophet, they objected to the Prophet and said that why can't we too go for jihad? We want our rights. According to some people, he is a scholar in Islam and he is a very intelligent and intellectual. And here he said, Allah know better about future and yourself. I have one question. क्या मैं जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, या किसी इंसान के साथ जो घटना हो रहा है, वो सब अल्लाह के रहमान से है, या यूँ कहे जो अल्लाह चाहे उसके हिसाब से हो रहा है? अकॉर्डिंग टू नॉट मी, जाकिर नायक कहता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह के मेहरबानी से हो रहा है, उसके बिना इजाज़त के कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि जो रेप्स हो रहे हैं वो भी अल्लाह के मेहरबानी से हो रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान में जो कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है। और एक बात, ये CA और NRC जो लागू हो रहा था, इस हिसाब से तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा था, है ना? और जो अभी मुस्लिमों पे जो अटैक होते हैं या मॉब लिंचिंग होती है, ये भी फिर अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा था। या तुम्हारी बहुत जगह मज़ारें तोड़ी जाती हैं जो हैं, ये भी फिर अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा था। ये सब अल्लाह की मेहरबानी से ही हो रहा था, तो तुम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ही क्यों कर रहे थे? Allah knows what is good for them. And those people who object to Islam and the Quran, they too know, but they don't want to admit. This Western world, this Western media, which are pointing fingers to Islam, I'm asking this media, the Western world, they too, if they say that Islam subjugates the women, they are bigger subjugators. I ask a simple question. That when you have sports, why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100 meters dash, why don't the men and women run together? Why? Why separate for men and separate for women? Why? When you are swimming, freestyle swimming, why men and women are separate? Why? They should have together. Men और women जो है वो मतलब ये सीधे सीधे आंसर कान नहीं पकड़ रहे, उल्टा घुमा के कान पकड़ रहा है। ये जो कि रिलीजन में है, मैन और वुमेन इक्वल नहीं है। और ये बोल रहा है उसको साबित करने के लिए कि जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं जो कि सेपरेटली खिलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और बॉडी के हिसाब से, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है और जो उनका पावर रहता है उसके हिसाब से। बट ये भूल गया, स्टडी करना शायद कुछ आउट ऑफ स्टॉक चला गया रहेगा, या दिमाग खाली पड़ गया उस समय, कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं जिसमें मिक्स मेल एंड फीमेल दोनों प्ले करते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, और ओलंपिक्स में भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। हो सके तो गूगल उठा के चेक भी कर सकते हैं। क्या नाम है? जाकिर नायक। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। Actually, I'm intending to cover my face. Is it obligatory in Islam? I mean, how could you please give me a reference? The sister asked the question that is it obligatory for a Muslim woman to cover the face? There are differences of opinion as far as the scholars are concerned regarding covering the face, but I agree more with the fatwa given by Sheikh Nasruddin Albani, where he says that covering the face is not compulsory. The Muslim woman's complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. The reason for this is those scholars who say that the face should be covered, they mainly give two ayahs from the Quran, that is from Surah Nur, chapter number 24, verse number 31, which says that say to the believing woman that she should lower her gaze and draw her veil over the bosom. The Arabic word used here is khimar, where people say that khimar means covering the face. In argument for this, there's a hadith in Abu Dawud, it's a Sahih hadith classified as Sahih, in which the Prophet said that when a woman, when she prays, she should have a khimar. Now, no scholar ever said that covering the face is compulsory during Salah. So in Arabic, the literal meaning of khimar is a head covering. It need not cover the face. So based on this verse does not prove that the face should be covered. क्या यार, ये जाकिर नायक हमको जोकर समझता है, खुद जोकर है। अभी बोल रहा है कि इस्लाम में कहता है कि फेस कवर करना ये कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है, और अल्लाह कहते हैं कि खाली हेड कवर करें। जैसे कि ये लोग टोपी लगाते हैं, वैसे औरतों को भी खाली सर पे डालना चाहिए। सर पे क्या उनके लिए टोपी वोपी आता है क्या, ऐसा कुछ? और खाली सर कवर करना कंपल्सरी है या इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है और कवर करना ज़रूरी क्यों है? और ये कवर करने के लिए जो कि रिच पीपल लोग, जो रिच मुस्लिम हैं, उन लोगों को ये लोग बोलते क्यों नहीं है? और खाली सर कवर करना ज़रूरी है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और जैसे अनेकों इस्लामिक कंट्री से
उसमें वुमेन को टॉर्चर क्यों किया जाता है कवर करने के लिए फेस, और मारा पीटा जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है? ऐसा क्यों? क्या वो लोग इस्लाम नहीं पढ़ते, या जाकिर नाइक जैसे लोग की वीडियो देख के सीखते इस्लाम? मैं तो सुना हूँ या देखा भी हूँ कि मोस्टली मुस्लिम पीपल्स आर रीड आवर बुक्स इन अ डे 3 times. Then how we can say that कि ये लोग इस्लाम नहीं पढ़ते और बिना पढ़े ही तुम जैसे लोगों की वीडियो देख के ये लोग सीखते हैं? ये लोग इस्लाम तो पढ़ते हैं, फिर ये कवर करते हैं। तो इसका मतलब इस्लाम में कहा हुआ है तभी ये लोग फॉलो करते हैं। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम खाली अल्लाह का मानते हैं। इट मीन्स अल्लाह इज़ फोर्स्ड टू वियर अ बुरखा. That's why they wear. Husband doesn't want to, can the woman still divorce without the husband's opinion? As far as talaq, as far as divorce is concerned, but natural, the right divorce has been given generally to the husband and the procedure described in the Quran. But if the woman coffee, that means if she wants, she too can give a divorce unilaterally. And if it is in the nikah-nama, then it's possible she can also give. Because during nikah-nama, any terms and condition can be mentioned by the husband or the would-be wife, as long as they are not demanding something which is haram or forbidding something which is fard. But giving talaq is the prerogative given by Allah subhanahu wa ta'ala to the man, to the husband. But if she says, even I too can give unilateral divorce if I wish, and if the husband agrees during nikah, then he will give. So the condition where she can give unilateral divorce is if it mentions in the nikah-nama, point number 1. Point number 2, if it is not mentioned in the nikah-nama, and if she wants a divorce, what she can do is she can request the husband that I don't want to continue with you, whether there may be reason, there may not be a reason, whatever it is. And if the husband agrees that though he wants to continue, but अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग घुमा के कान क्यों पकड़ रहे? सीधे सीधे कान पकड़ो ना और बोलो ना कि बिना आदमी की इजाज़त के औरत कुछ भी नहीं कर सकती। भले उसके साथ गलत बहुत कुछ हो रहा हो, फिर भी ये बोल रहा है कि अगर औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको पहले अपने पति से परमिशन लेना चाहिए, फिर कोई सुप्रीम रहता है उससे इजाज़त लेना चाहिए, फिर बातचीत करना चाहिए, मतलब वगैरह वगैरह, तभी ये डिवोर्स ले सकती है। मैं इन जैसी औरतों से एक सिंपल सी बात कहता हूँ, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हमारे देश में भी लॉ है। अगर आपको तलाक चाहिए ना तो इन जैसे फालतू लोगों की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे पुलिस के पास जाए या लॉयर के पास जाए या कोर्ट में डायरेक्ट केस दायर करें, आपको तलाक मिल जाएगा और आप इन जैसे पागलों से आज़ाद हो जाएंगे। समझ नहीं आता ये लोग औरतों को पागल समझते हैं क्या? क्योंकि मैं देखा हूँ अधिकतर लोग ये लोग को ज़्यादा कवर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ज़्यादा करके औरतों को ही करते हैं। अभी औरतों भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा पागल है भाई, मतलब मैं सुना हूँ और देखा भी हूँ। क्योंकि कभी कभी बच्चे जो मोस्टली पैदा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ये सब उनकी रहबानी है, इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा हुए हैं, मतलब ये सेक्स नहीं करेंगे फिर भी बच्चा पैदा हो जाते हैं आसमान से। और ये भी बात सुना हूँ कि क्या बोलते हैं यार, हाँ ये बुर्खा नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, जैसे ऊपर हूर वाला सिस्टम है, ऐसे औरतों के लिए भी कुछ है, शायद वो नहीं मिलता है। और एक बात, इन लोगों को ये भी लगता है कि ये उनकी सेफ्टी के लिए है या उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इसको पहनेंगे तो इनके ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी। वैसे तो है जो बहुत लोग बोलते हैं कि काला चीज़ से नज़र नहीं लगती है, बट काला तो हेयर भी है, उसको पहनने की क्या ज़रूरत है? और एक बात सिंपल सी, ये बुर्खा पहनने की ज़रूरत ही क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए सोना है, ये हमारी इज्जत बचाता है, ये हमारी वैल्यू बढ़ाता है। मुझे लगता है कि ऐसी सोच रखने वाले ये ऐसे लोग होते हैं कि जो गोबर को चॉकलेट समझते हैं, गोबर को गोबर की नज़र से नहीं देखते हैं। फेस कवर करने की क्या ज़रूरत है? उनकी भी आइडेंटिटी है, उनको भी अपना पहचान बढ़ाना है, क्यों किसी की पहचान छुपानी है? जो इसमें मेल्स होते हैं ये तो अपना चेहरा फ्रीली दिखाते हैं, तो औरतों को चेहरा छुपाने की क्या ज़रूरत है? और मुझे समझ नहीं आता कि औरतें भी क्या पागल है, आवाज़ क्यों नहीं उठाती है इसके खिलाफ़? आवाज़ उठाए तो बहुत लोग हैं हमारे इंडिया में जो वुमेन्स को सपोर्ट करेंगे, और हमारे इंडिया में तो स्पेशल। कहना चाहता हूं कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर पहले तो इस बात के लिए जाकिर नाइक को क्लैप बजाना चाहिए, जाकिर नाइक के लिए, कि मर्सिडीज कार को देखना हो तो पहले उसके ड्राइवर को देखें। व्हाट अ कॉमन सेंस यार, मतलब कि आप मर्सिडीज़ का डिज़ाइन मत देखो, मर्सिडीज़ के स्पीड मत देखो, कितना माइलेज दे रही है वो मत देखो, उसमें यूनिक क्या है वो मत देखो, कुछ भी मत देखो, खाली उसका ड्राइवर देखो। मतलब कि आपको भैंस देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें दूध कितना ज़्यादा देती है और कौन से ब्रीड की है, कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि गाय कौन सा गोबर देती है, इसको
ऐसे लोग को बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट है और मास्टर है। थू है यार, ऐसे लोग को मास्टर रहेंगे तो ये सब में कम से कम थोड़ा बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए और इंटेलेक्चुअलिटी तो रहनी चाहिए थोड़ा सा। और बोलने का क्या बोल रहा है इंसान वो तो समझ लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब कि गाड़ी को ना देखे, ड्राइवर को देखे, मतलब कि बम देखो, भूल को देखो। भाई क्लैप फॉर देम। अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। देखो मैंने बोला था चोर के दाढ़ी में तिनका। देखो ये अगर देखो ये खुद ही बोल रहा है कि अगर जानना इस्लाम को तो उसकी किताबें पढ़ो। और मैंने पहले ही बोला था कि लोग किताबें पढ़ते हैं तभी ये सब करते हैं, जो गुनाह होता है और बम ब्लास्ट होता है। और एक तो भी बीच में वायरल हुआ था ना कि हमको ये नहीं जानना है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, हमको बस ये जानना है कि हमको 72 हूर कैसे मिलेंगी और वगैरह वगैरह। इस्लाम की किताब को मोस्ट ऑफ पीपल पढ़ते हैं और ज़्यादा करके पाकिस्तान के लोग पढ़ते हैं और ईरान के लोग भी पढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी पढ़ते हैं। और यहाँ के मोस्ट ऑफ पीपल कट्टरपंथी है जो कि हमेशा दूसरों की जान के लिए तड़पते रहते हैं। इट मीन्स ये किताबों से यही सीखते हैं, मतलब कि ये किताब उन लोगों को यही ज्ञान देती है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी जाकिर नाइक, क्योंकि जाकिर नाइक ने बोला है मैं इस्लाम में ज़ीरो हूँ। अगर इस किताब के बारे में जानना है तो इस बुक को पढ़ो। और कोई नाम बोला वो इसमें एक्सपर्ट है। हेंस इट्स प्रूव कि क्राइम इक्वल टू डैश। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है, लेकिन खवातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। अरे यार पहले इसको एक बार अच्छे से तो समझा दो। बोले कि बार बार टेढ़ा कान ना पकड़े, सीधे सीधे कान क्यों नहीं पकड़ रहा है यार? ये हर बार टेढ़ा ही कान पकड़ रहा है, शायद उल्टा पैदा इसका है। इसलिए ये बोल रहा है कि जो मोमिना रहती है, इट मीन्स जो मुस्लिम वुमेंस रहती है, उनको अल्लाह कहता है कि ये मस्जिद में जा सकती हैं। ये जाकिर नाइक कह रहा है और फिर उल्टे बात से पलट जा रहे हैं। इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है, जो कि घर में रहना, बच्चे पैदा करना, घर का काम करना, घर संभालना, इसलिए वो उनको नहीं जाने देते। लेकिन वो जा सकती हैं। समझे कुछ? मतलब कि तुम खाना नहीं खा सकते लेकिन खा सकते हो, तुम घूमने नहीं जा सकते हो लेकिन जा सकते हो, तुम बम नहीं फेंक सकते लेकिन फेंक सकते हो। समझे? सही पकड़े हैं। Let us ask a question that Almighty God knows everything before He created the heaven and the earth, before He created human being, before Prophet Muhammad came here, peace be upon him. He knew everything. If He knew that some will go to heaven, majority will go to hell, so why did He create the human being? Isn't it sadistic? Is the basic question, correct? Right. Second question I'll come to it later on. Brother, that majority will go to hell. Well, even if one person is going, it doesn't make any sense. Even if one person goes to He could avoid that. hell, he could have avoided that. I mean, he could avoid being disappointed. Of course. I'll reply. The brother said even if one person goes to hell, it is as though God would be disappointed. God doesn't get disappointed ever. Now coming to your question, I started a school. And you may have heard Islamic International School. If a teacher takes an examination, if she's just, while she is giving the examination, she writes in the maths paper 2 plus 2 is equal to how much? The student in front of her or him, the teacher, writes 5. She can very well tell the student, change 5 to 4. Would it be just on the teacher during the test and examination to correct a student who's writing a wrong answer? पहले तो उस भाई के लिए आप क्लैप करेगा, क्योंकि उस बंदे में दम था कि उन कट्टरपंथी लोगों के बीच में खड़े होकर वो सवाल पूछ रहा था। भाई सल्यूट है,
और सवाल भी पूछा है बंदे, नॉर्मली पूछा है, और उसका पूछने का जाकिर नायक जवाब कितना घुमा फिरा के दे रहा है। मतलब वो बंदा बोल रहा है कि जब सबको भगवान नहीं बनाया है, अल्लाह नहीं बनाया है, तो गलत करने वाले को क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, बात भी सही है, लेकिन जाकिर नायक कितना घुमा के जवाब देता है कि टीचर बोली कि 2+2 5 लिखो, फिर 4 करो, ये वो, जो कि टोटल नॉनसेंस है। इस क्वेश्चन से वो फिट ही नहीं बैठता है। पहली बात, इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन या बोले दूसरा आंसर फिट हो सकता है। जैसे कि मुझे पता है कि ये चीज़ फ्यूचर में जाके बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है, तो मैं ऐसी चीज़ को बनाऊँ ही क्यों जो कि मुझे ही गाली देगा, मुझे ही मारेगा, मुझ पर ही एक्सटॉर्शन करेगा, तो मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ ही क्यों। इस बंदे का वो सवाल था। बट जाकिर नायक को भी भाई क्या मैनिपुलेट करता है, कौन से हिसाब से कि बैठे बैठे लोग आके के चूतिया बन गए, और ये बंदा भी मतलब जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं ना, 100 लोमड़ियों के बीच एक समझदार इंसान भी खड़ा हो तो वो समझदार इंसान को चुप रहने में बेहतर होता है। सेम इधर भी वही हुआ। और जाकिर नायक बोल रहा है कि इंसान जो है कि वो बेटर क्रिएशन है एंजल्स से। अभी एंजल्स को तो हमने कभी देखा नहीं है और ना कभी सुना है, और इसका हमारे पास कोई एविडेंस है कि ऐसी चीज़ कहीं होती भी है। होती तो हम इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन इसका अभी तक एविडेंस है ना मिला है, सिंपल सी बात। और ये बोल रहा है कि गॉड के अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग जा सकते हैं, लेकिन एंजल्स कभी नहीं जाते। अभी एंजल्स जैसी कोई चीज़ें नहीं होती तो अगेंस्ट में जाएंगे क्यों। और ह्यूमन बीइंग्स जो कि अगेंस्ट में जाते हैं तो क्या होगा, क्या उसे मार दिया जाएगा? मार ही देते भाई। जो कि देश के साथ खड़ा रहेगा धर्म को छोड़ के, तो कट्टरपंथी लोग मार ही देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। अभी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत कुछ हो जाता है लोगों के बीच में। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जाकिर नायक तो सब कुछ इस्लाम की बुक के हिसाब से ही करता है। इट मीन्स जाकिर नायक एंजल है या ह्यूमन बींग है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ तो जाता ही नहीं है कभी। इट मीन्स वो एंजल है। एंजल मतलब वुमेन, वुमेन मतलब जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन होता है वो। लेकिन जाकिर नायक के साथ एक्सटॉर्शन होता ही नहीं है, बल्कि ये तो खुद ही लोगों को उकसाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए। मतलब कि एंजल नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के साथ रहता है। ये पागल है कि हम पागल है भाई? समझ होगा तो बता देना। Even I don't remember now, but I have faith in the Quran that Quran cannot be wrong, because scientifically, if you heard my lecture, 80% of the Quran is 100% matching with science. 20% is ambiguous, neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct and not even 0.1% of the 20% is wrong, so my logic says even this 20% would be right. I'm a scientific person, I'm a logical person. So I believe in the statement of the Quran that we chose. If you wouldn't have chosen, you could have questioned God. Why did you make me a human being? हो इधर भी साइंस, मतलब कि कुरान भी साइंस से मैच खाता है। ये ऐसे लोग ही है कि जो गोबर खाते हैं, गोबर रखते हैं और बोलते हैं कि दोनों सेम ही है। ये ऐसे लोग हैं कि जो चापट खाते हैं, मार खाते हैं, बोलते कि हमारे लिए प्राइज है। ये ऐसे लोग हैं जो गटर में गिर जाते हैं, चप्पल का हार पहनते हैं, लेकिन बोलते हैं हमारे लिए मेडल है। अब क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में कि जो साइंस को किससे कंपेयर कर रहा है। मतलब कि वो वुमेन को कवर करना ये भी साइंस है, और क्या बोलते हैं ऊँट का यूरिन ड्रिंक करना वो भी साइंस है, अर्थ फ्लैट है वो भी साइंस है, और क्या 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 और भी कुछ होगा तो मुझे बता देना भाई कमेंट में कि और क्या क्या साइंस है। मतलब कि बिग बैंग की थ्योरी को नहीं मानना वो भी साइंस है, डार्विन के थ्योरी को नहीं मानना वो भी साइंस है। कहाँ से लाते हैं ऐसा लीचड़पन ये लोग अपने अंदर? अरे कहना क्या चाहते हो?